آغاز اس خبر کے ساتھ کہ خاتون جج اور پولیس افسران کے خلاف بیان کا معاملہ عمران خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ جے آئی ٹی نے عمران خان سے 21 سوالات کے جوابات مانگے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے تقریباً 20 منٹ تک پوچھ گچھ کی گئی۔ پیشی کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ مذاق بن گیا ہے۔ انہوں نے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا کہا تھا، لیکن دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ اس پر مزید معلومات محمد اویس سے ہم جانیں گے۔ اویس بتائے گا، 2 بار طلبی کے بعد پھر عمران خان آج پیش ہوئے، کیا کچھ ہوتا رہا اس پیشی کے دوران؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج جے آئی ٹی کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، کیونکہ اس سے قبل جے آئی ٹی کی جانب سے 2 بار نوٹسز جاری کیے گئے تھے۔ عمران خان کو طلب کیا گیا تھا، لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے۔ تحریری طور پر وکیل کے ذریعے انہوں نے اپنا جوابات جو تھے وہ جمع کروائے تھے، جسے جے آئی ٹی نے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ فریقین آپس میں طے کر لیں کہ عمران خان جے آئی ٹی کے سامنے کہاں اور کس وقت پیش ہوں گے۔ اس کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جے آئی ٹی کے روبرو پیش ہوئے ہیں، جہاں پر جے آئی ٹی کی سربراہی جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن فرد کاظمی نے کی ہے، جبکہ عمران خان سے 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ جو ہے انہیں تھمایا گیا۔ تمام تر جو جوابات تھے وہ تحریری طور پر لینے کے ساتھ ساتھ جے آئی ٹی کی جانب سے سوالات بھی پوچھے گئے، جس کا عمران خان نے جواب بھی دیا۔ اس کے علاوہ جو جوابات تحریری طور پر دیے گئے عمران خان کی جانب سے، وہ ایس پی انویسٹیگیشن مہدی شاہ جو تھے ان کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ رخسار مہدی کے حوالے کیے گئے۔ اس کے علاوہ جے آئی ٹی کی جانب سے پوچھا گیا، کیونکہ اسکرپٹ جو تھا وہ جے آئی ٹی کے سامنے تھا، پیمرا سے حاصل کیا گیا تھا، جس میں پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نے خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکیاں دی، جس پر عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ ان کا مقصد کسی کو دھمکانا نہیں تھا، اور نہ ہی ملک میں انتشار پھیلانا، اور نہ ہی انہوں نے کسی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ جج زیبا چودھری تمہارے خلاف ایکشن لیں گے۔ جس ایکشن کی بات کی گئی، جس ایکشن پر دفعہ انسداد دہشت گردی کی دفعات 7-8 یہ لگائی گئی، وہ ایکشن لیگل ایکشن تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نے آئی جی اور ڈی آئی جی کو اور جج زیبا چودھری کو یہ کہا تھا کہ لیگل ایکشن لیں گے، لیکن ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی۔ ایک دفعہ پھر سے عمران خان کی جانب سے یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ دہشت گردی کی جو دفعات ہیں ان کو مقدمے سے خارج کیا جائے، کیونکہ تھانہ مرگلہ میں عمران خان کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس میں 7-8 کی دفعات کو شامل کیا گیا تھا۔ آج جو عمران خان کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر جے آئی ٹی ریکارڈ کا حصہ بنائے گی اور عدالت میں پیش کرے گی۔ جے آئی ٹی اگر سمجھتی ہے تو جے آئی ٹی کی جانب سے عمران خان کو دوبارہ بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ 20 منٹ سے زائد آج عمران خان جے آئی ٹی کے روبرو پیش ہوئے ہیں، جہاں پر ان سے سوال و جواب کیے گئے، اور عمران خان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اب اپنا بیان جو ہے وہ جے آئی ٹی کو قلم بند کروا دیا گیا ہے۔ جی اویس یہ بتائے گا کہ ایک تو آپ نے بتایا کہ 21 سوال پوچھے گئے، اور پھر الگ سے بیان بھی عمران خان نے قلم بند کروایا ہے۔ ان 21 سوال میں چیدہ سوال کون سے تھے وہ بھی بتائے گا، اور دوسرا یہ بتائے گا کہ پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو نہیں رہے تھے، اور آج جب پیش ہو گئے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ جی بالکل، کیونکہ لیگل جو مشاورت تھی وہ عمران خان کی جانب سے کی گئی تھی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ عمران خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ سوالات کی جہاں تک کی بات ہے تو سوالات کیونکہ جو اسکرپٹ تھا پیمرا سے جو جے آئی ٹی کے سامنے تھا اس سے متعلق سوالات پوچھے گئے کہ جے آئی ٹی کیونکہ دفعہ 144 تھی، ریلی نہیں نکال سکتے تھے، لیکن آپ نے ریلی کی خلاف ورزی کی، اور جو بیان آپ نے دیا یہ جگہ کون سی تھی اور اس کے مقاصد کیا تھے، جس پر عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ F9 پارک میں انہوں نے سپیچ کی تھی، اور F9 پارک میں جو سپیچ کی گئی اس کا مقصد جو تھا وہ توڑ موڑ کر پیش کیا گیا، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے جو زیبا چودھری کے علاوہ جو سیشن جج ہیں اس کے علاوہ پولیس افسران کو بھی دھمکیاں دی، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ جو الفاظ میرے استعمال کیے گئے، جو میں نے سپیچ کی، ان کا مقصد یہ تھا کہ قانونی کارروائی لیگل ایکشن لیں گے، کیونکہ یہ مقدمہ جو تھا اس میں جے آئی ٹی
JIT बनाई गई और JIT जो है वो जो दायरा इख्तियार है JIT का वो सिर्फ और सिर्फ 780A की जो दफात है उससे मुतालिक है कि इमरान खान पर जो 780A की दफात लगाई गई हैं आया कि वो मुकदमे में रह सकती हैं या नहीं, क्योंकि अदालत की जानिब से कहा गया था अगर 780A का नफाज नहीं होता तो मुकदमे से 780A की दफात जो है उनको खारिज किया जाए। इसके अलावा इमरान खान आज पुरएतमाद नज़र आ रहे थे क्योंकि इससे पहले इमरान खान JIT के रूबरू पेश नहीं हो रहे थे। काफ़ी खदशात का इजहार भी उनके जो वकला थे वो भी कर चुके थे कि पुलिस पर उनको एतमाद नहीं है, लेकिन जब दोबारा तलबी की गई तो अदालत के अहकामात पर आज इमरान खान पेश हुए। काफ़ी पुरएतमाद इमरान खान नज़र आ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज उनकी नॉर्मल थी, लेकिन मीडिया टॉक्स में वो एक दफ़ा फिर से एग्रेसिव नज़र आए। जो मौजूदा हुकूमत है उसको एक दफ़ा फिर से उन्होंने टारगेट किया, उस पर शदीद तनकीद भी की, लेकिन पुलिस की हद तक आज इमरान खान मुतमईन नज़र आए और अब JIT को बाकायदा तौर पर उन्होंने अपना बयान जो है वो भी कलमबंद करवा दिया है। जी ठीक है मोहम्मद अवैस, बेहद शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। चेयरमैन PTI इमरान खान आज JIT के सामने पेश हुए और इस पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनकी तरफ से यही कहा गया कि हुकूमत को पैगाम है जितना तंग किया जाएगा उतनी ही तैयारी करके हम आएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान आज SSP इन्वेस्टिगेशंस फरहद कासमी के सामने पेश हुए और JIT में अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया गया और कहा गया कि मेरी आज JIT में पहली पेशी हुई, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी दफात लगाई गई। मजीद क्या कहा गया मुलाहिजा कीजिए। चोरी कर करके पैसा सारा बाहर भेज दिया, सो इसलिए ये जो भी ये करेंगे, मेरा आज आप सब इन सब को कौम के सामने मैं कह रहा हूं कि जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हुकूमत का असल निशाना तो आवाम है, इमरान खान तो सिर्फ रास्ते में खड़े हैं, ये कहते हैं PTI रहनुमा असद उमर। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने सियासत में आकर अरबों डॉलर्स कमा लिए हैं। इमरान खान की कौमी सियासत में मौजूदगी से मौजूदा हुकूमत को सियासी मौत नजर आ रही है। एक तरफ खड़ी हुई है, ये सारे जो काम हो रहे हैं ना, इसका निशाना इमरान खान है, लेकिन असल में इसका निशाना इमरान खान नहीं। इमरान खान सिर्फ रास्ते में खड़े, इसका निशाना है एक आम पाकिस्तानी, एक पाकिस्तान की अवाम जो सियासी इस वक्त अदम इस्तेकाम है। पूरी कौम एक तरफ खड़ी हुई है, हुकूमत जो है वो चिमटी हुई है कुर्सी से दूसरी तरफ खड़ी हुई है। कोई दुनिया का एक्सपर्ट लेके आ जाओ, कोई नोबेल प्राइज विनर लेके आ जाओ, वो मईशत ठीक नहीं कर सकता मेरे भाई। बंद कमरे के अंदर बैठ के मीटिंगें करने से ये मईशत ठीक नहीं होने वाली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि इमरान खान इदारों को ललकार रहे हैं, सियासी जमातों के लिए दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गया कि इमरान खान मुल्क में खून रेज़ी करवाना चाहते हैं। वो मजहब को सियासत में इस्तेमाल करके फितना और फसाद बर्पा करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। मुल्क की सलामती के इदारों का एहतराम हर पाकिस्तानी पर फर्ज है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की जानिब से आज मीडिया से गुफ्तगू की गई और कहा गया कि इमरान खान इदारों को ललकार रहे हैं, सियासी जमातों के लिए दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क में खून रेज़ी हो और वो मजहब को सियासत में इस्तेमाल करके फितना बर्पा करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अब बात करेंगे सैलाब और उसके मुतासरीन की। रहने को घर नहीं, खाने पीने को अशिया मुयस्सर नहीं, भूख प्यास से तड़पते सैलाब ज़दगान अपने जिगर गोशे को बेचने पर मजबूर हो गए हैं। झोडो के इलाके हयात खामे सलीम की खातून ने दुहाई दी है कि सैलाबी रैला मकान को बहा ले गया है, खाविंद का भी पता नहीं है। 4 बच्चों की कफालत बहुत मुश्किल है, बच्चे ना बेचे तो मर जाएंगे। इसी बारे में रिपोर्ट। बच्चे बराए फरोख्त, माँ अपने जिगर के टुकड़े फरोख्त करने पर मजबूर, मगर क्यों? मीरपुर खास के तलका झड्डू की खातून के पास खाने को खुराक नहीं, पीने को पानी नहीं, सर छुपाने को छत भी नहीं। मुतासरा खातून का कहना है एक वक्त में हंसता बसता घर था, लेकिन सैलाब ने सब कुछ उजाड़ दिया।
मकान गिर गया, सामान बह गया। सैलाबी रेलों के बाद खावन का भी कुछ पता नहीं। 4 बच्चे भूख प्यास से बिलखते रहते हैं। हम मुश्किल में क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप में खड़े हैं, नहीं कोई रहने के लिए जगह सही से मिल रही है हमारे को। तक हमारी कोई दाद फिरियाद होवे जा तो हम तो इतने मजबूर हो गए ताकि बच्चे अपने बेचने के चक्कर में पड़ गए। मजबूर माँ ने दुहाई दी बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, इन्हें ना बेचूं तो क्या करूं, कोई ले जाएगा, बच्चे तो जिंदा रह जाएंगे। इस खातून जैसी हजारों माएं सैलाब ज़दा मुतासरा इलाकों में सड़कों पर बच्चे लिए खुले आसमान तले बैठी हैं। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी है। सिंध और बलूचिस्तान में 24 घंटों के दौरान 8 अफराद मुख्तलिफ अमराज में लुकमा अजल बने। जिला दादो में 3 बच्चे मनो मिट्टी तले जा सोए। बलूचिस्तान में भी 3 अफराद दम तोड़ गए। सैलाब मुतासरीन अब बीमारियों से लुकमा अजल बनने लगे। सिंध और बलूचिस्तान में मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज ने 24 घंटों में 8 अफराद की जान ले ली। सिंध के बेशतर अजला में घरों से बेघर होने वाले अफराद सड़कों और टीलों पर रहने पर मजबूर हैं। इन इलाकों में मच्छर और मक्खियों की बहुतायत, हब्स और गर्मी के बायस वबाई अमराज फूट पड़े हैं। गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगू, पेट और जल्दी अमराज तेजी से फैल रहे हैं। मलेरिया और गैस्ट्रो में हमारा गांव सारा फंस गया है। दादू के इलाके जोही, मेहर और खैरपुर नाथन शाह में 3 बच्चे दम तोड़ गए। 5 रोज में मरने वालों की तादाद 15 हो चुकी है। उधर कोट ढीजी में गैस्ट्रो में मुब्तला 2 बच्चे इलाज न होने से चल बसे। यहाँ भी सैलाब आने के बाद मुख्तलिफ अमराज में कई बच्चों समेत 15 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन वबाई अमराज से नबरदाजमा हैं। झलमक्सी और नसीराबाद, सोहबतपुर और दीगर इलाकों में मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं। 24 घंटों में मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर अमराज में मुब्तला 3 अफराद चल बसे हैं। सिंध में 1100 मिलीमीटर बारिशें हुई हैं। कई इलाकों में 10 फीट तक पानी अभी भी खड़ा है, जिसे निकालने के लिए वक्त लगेगा। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, मानसून का एक नया स्पेल आ रहा है, सूरत हाल को मामूल पर आने में वक्त लगेगा। मंचर झील में कट लगाने के बावजूद 2 दिन तक पानी की सतह में कमी नहीं आई। उन्होंने मजीद कहा कि टीवी में नाम नेहाद माहिरीन फजूल की तनकीद कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने मुलाकात की। डॉक्टर सुमेरा रहमान ने एपसप की जानिब से इमदादी कामों की रिपोर्ट गवर्नर पंजाब को पेश की। सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान भी किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से सुपीरियर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की मुलाकात। एपसप की तरफ से सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली और मदद से मुतालिक सरगर्मियों से आगाह किया। डॉक्टर सुमेरा रहमान ने बताया, पाकिस्तान के निजी शोबे की यूनिवर्सिटीज की एसोसिएशन ने अब तक 35 करोड़ रुपए से जायद सैलाब मुतासरीन की मदद की है। उन्होंने मिशन निसार की तफसीलात बताते हुए कहा, मुतासरीन में खाने पीने की अशिया, कपड़े और अद्वियात तकसीम की गयी। एपसप ने कई इलाकों में मेडिकल कैंप्स कायम किए, जहाँ मुतासरीन को इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही है। एपसिप 1 करोड़ रुपए से मुतासिन की बहाली का एक प्रोजेक्ट शुरू करेगी। गवर्नर पंजाब ने निजी जामियात की सैलाब मुतासिन की मदद और बहाली के काम को सराहा और कहा, मुश्किल के इस वक्त में मुतासिन की खिदमत बड़ी नेकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर का वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी के साथ तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अली अमीन गंडापुर ने वाइस चांसलर को फोन किया, धमकियां भी दी। इस पर वाइस चांसलर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को शिकायती खत भिजवाया। मामले पर अली अमीन गंडापुर ने एक और जवाबी वीडियो जारी कर दी। बोले कि वो मौकिफ पर कायम है, वज़ीर आला से डरते हैं और ना ही गवर्नर का कोई खौफ है। अली अमीन गंडापुर का वीसी गोमल यूनिवर्सिटी को पैगामात, धमकियां दी, इस्तीफे के लिए दबाव डाला। वाइस चांसलर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया, कहा अली अमीन गंडापुर कुल आम यूनिवर्सिटी के तलबा को सपोर्ट कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर कुल आम यूनिवर्सिटी के तलबा को सपोर्ट करके यूनिवर्सिटी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नर से मावत मांगते हुए कहा, साबिक वफाकी वजीर इन्हें मैसेज पर धमकियां दे रहे हैं, इस्तीफे के लिए दबाव डाल रहे हैं। वीसी के खत के बाद अली अमीन गंडापुर का एक और ऑडियो पैगाम आ गया, कहा वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, वज़ीर आला से डरते हैं, ना ही गवर्नर का कोई खौफ है। वाइस चांसलर गैर ज़रूरी तौर पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तामीरात में रोड़े अटका रहे हैं। डेरा इस्माइल खान के तलबा और अवाम के साथ ज़्यादती की जा रही है।
खामोश नहीं बैठेंगे। गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने वाइस चांसलर को जवाबी मरासला भी जारी कर दिया। वीसी को गोमल यूनिवर्सिटी के असासों की तकसीम में रुकावट का जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा कि वो असासों से मुताल्लिक 3 रोज के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट चांसलर ऑफिस जमा कराए। असासों की तकसीम से मुताल्लिक गोमल यूनिवर्सिटी, सेनेट, सिंडिकेट और सूबाई काबीना की कायम करदा कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शाहिद खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। अभी आपको बताएं कि साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार दौर के मुबैना करप्शन का एक और मामला सामने आया है। पंजाब कैटल मार्केट एंड डेवलपमेंट कंपनी की लेवी फीस में मुबैना घपले, मवेशी मंडियों में व्यापारियों से वसूल करदा करोड़ों रुपए करप्शन की नजर हो गए हैं। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी ने महकमा एंटी करप्शन को रेफरेंस भिजवा दिया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, कितने करोड़ का ये घपला हुआ है और मजीद क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में? जी, ये लगभग 6 से 8 करोड़ का मुबैना तौर पर घपला हुआ है और ये मवेशी मंडियों में व्यापारियों से वसूल करदा रकम थी जो मुबैना तौर पर जो है खुर्द की गई है। साबिक COO पंजाब कैटल मार्केट एंड डेवलपमेंट रेहान अली पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अपनी कलेक्शन टीमें तश्कील देकर माली बेज़ाब्ती की। जब ये मामला मैनेजमेंट बोर्ड एंड डेवलपमेंट कंपनी के सामने आया तो उन्होंने एंटी करप्शन को बाकायदा तौर पर रेफरेंस भिजवाया, जिसके बाद एंटी करप्शन लाहौर ने इस हवाले से तहकीकात शुरू कर ली हैं और 19 सितंबर को फोकल पर्सन से मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि रेहान अली को मुबैना तौर पर जाली डिग्री के इल्जाम पर जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया था और रेहान अली ने तनख्वाह की माद में भी 18 माह के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपए जो है वो वसूल किए। जी अच्छा वकास, ये भी बताइएगा कि अभी ये जो अफसरान हैं क्या अभी भी पंजाब गवर्नमेंट में हैं, क्या अपनी ड्यूटी दे रही हैं और इनके खिलाफ अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी, जो CEO रेहान अली हैं उनको तो टर्मिनेट कर दिया गया था, लेकिन जो उनकी तश्कील करदा टीम के लोग हैं उस हवाले से भी तहकीकात जारी हैं, क्योंकि जो साबिका CEO हैं उनका जाली डिग्री का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया गया और अब जो पंजाब कैटल मार्केट एंड डेवलपमेंट कंपनी है वो जो उन्होंने तनख्वाहें दी हैं रेहान अली को वो भी वापस लेने के लिए वो मुतहर्रिक हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास गौरी। वेलकम बैक। मीरपुर खास शहर के मुतादिद इलाके अब भी ज़ेर-ए-आब हैं। कच्चे मकान पानी में डूबे हुए हैं। इलाके की हालत जार बता रहे हैं बिलाल महमूद। बिल्कुल, मीरपुर खास जिले में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस जहाँ मुख्तलिफ तहसीलें ज़ेरे आब आई हुई हैं, वहीं पर मीरपुर खास शहर के कई इलाके अब तक क्लियर नहीं किए जा सके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर खास के इलाके गोल्डन टाउन। ये पूरा इलाका ज़ेरे आब आया हुआ है। यहाँ पर लोगों के घरों के अतराफ पानी जमा है, लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। लोग अपने मकान, अपने घर छोड़ने पर मजबूर हैं। कई लोग आर्जी खेमे बनाकर बाहर निकले हैं, उनके खेमे भी जो है वो हवा के अंदर, तूफानी बारिशों के अंदर टूट चुके हैं, उड़ चुके हैं। यहाँ पर इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इतने परेशान हैं जो खाने को भी मजबूर है, समझे ना। या मच्छर भी, हमको मच्छरदानी का भी जरूरत थी, राशनों का भी जरूरत है और तंबुओं को भी जरूरत है। लोग बहुत से हैं, परेशान हैं। कल जो अपना हवा था, तेज हवा था, तो लोगों के जो है ना जितने भी हैं पर्दे मर्दे उड़ गए, अभी सारे बाहर आ गए और पानी देखो कितना है, समझे ना। तो हमको जरूरत है तंबू का और राशनों का और कुछ पैसों का। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे। इनका यही कहना है कि यहाँ पर एक तो मच्छरों की यलगार है, ऊपर से जिला इंतजामिया हो या मुखैर हजरात हो, उनकी जानिब से इस इलाके को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है। हैदराबाद के रिलीफ कैंप्स में आने वाले जिला मुतासरीन सेहत और सफाई समेत दीगर मसाइल का शिकार हैं। जिला इंतजामिया की सहूलत फराहम करने के दावे महज दावे ही दिखाई दिए। मजीद मालूमात क्या है, नासिर शेख से हम जानेंगे। जिस सिंध में हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासिर होने वाले सैकड़ों के तादाद में ख़ानदान हैदराबाद आए हैं, जिनमें खैरपुर, नातन शाह, मेहड़, जूही, दादू, लाड़काना, जैकमाबाद के ख़ानदान हैं जो कि परेशान हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासमाबाद के एक ट्रेनिंग सेंटर में। जी यहाँ पे हमारे साथ एक साहब हैं। जी बताइएगा, आप जो यहाँ पहुँचे हैं कितने लोग हैं, आपको क्या मसाइल का सामना है और इस वक्त क्या सूरत है? इधर 1500 लोग आए हैं और उनके लिए कोई एडी का फैसिलिटीज़ कौन मुहैया की है। और अभी हम तो जा रहे हैं निकलने के लिए। मेरे को तो मुख्तार कार ने कहा कि भाई 100 बंदे एक गाड़ी में बैठे। 100 बंदे कैसे बैठेंगे? बकरी तो नहीं है ना जो उनको गुद सुद के लगाए।
नहीं ऐसा नहीं होगा, वो इतनी फिरती करता रहा। नहीं, आपको यहाँ क्या सहूलियात? सहूलियात इतनी नहीं है, सहूलियात क्या बताएं हम, वो तो खुद को पता है, तो क्या जुल्म है यहाँ पे। इनका कहना है कि इन्हें कोई सहूलियात नहीं है, यहाँ गंदगी बहुत है, यहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, हेल्थ के हवाले से इनको कोई जो है फैसिलिटीज़ नहीं है। इसके अलावा छोटे बच्चे हैं जो बीमार हैं, ख़वातीन परेशान हैं, अपने तौर पे खाना पका रही हैं। यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें रहने की यहाँ जगह मौजूद है। जी ठीक, शुक्रिया आपका। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भत्ता खोरी उरूज पर है। कारोबारी अफराद के बाद अरकानी असम्बली को भी भत्ते की कॉल्स और पैगामात आने लगे हैं। भत्ता न देने पर निशाना भी बनाया जाने लगा है। हुकूमत का कहना है कि शिद्दत पसंदों के मुख्तलिफ ग्रुप्स भत्ता खोरी में मुलविस है। इसी बारे में पेशावर से लिहाज अली रिपोर्ट के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द एक मरतबा पर मुतहर्रिक, कारोबारी हलकों के बाद अरकानी असम्बली भी बत्ताखोरों के निशाने पर। सूबे में कई वज़रा समेत कई अहम शख्सियात से बत्ता वसूली का इंकशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबसी की तस्वीर बन गए। हमें भी मुख्तलिफ अवकात में थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि फलां ने मुझे इतने पैसे दिए हैं और बाकी से हम इस तरह लेंगे। तो ये अमूमन इस तरह चलता रहता है। मेरे समेत मेरे हल्के के हजारों लोगों को कॉल आ रहा है, 30-35 लाख के कारोबार करते हैं, उसको कॉल आ रहा है, और उसके साथ ये हजारों अरबों रुपयों के जो प्लाजे खड़े हुए हैं उसको कॉल नहीं आ रहा है। पत्ताखोरी से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी आवाजें उठना शुरू हो गई। अपोजिशन अरकान की ऐवान में हुकूमत पर शदीद तनकीद। हुकूमत का कहना है कि बत्ताखोरी से मुतालिक आने वाले कॉल्स का कोज लगाया जा रहा है। अफगानिस्तान से आते हैं उनका भी देखा जाएगा, जो पाकिस्तान के अंदर से आते हैं उनको भी देखा जाएगा। तो ये एक बाकायदा इसके लिए सेल बना हुआ है और वो लगे हुए हैं इस पे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुताबिक रवा साल बत्ता से मुतालिक 40 तक FIRs का इंदराज किया जा चुका है। ताहम अपोजिशन अरकान का कहना है कि पुलिस शिकायत दर्ज करने की बजाय मामला खुद निपटाने का मशवरा देती है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ लिहाज अली, न्यू न्यूज़ पेशावर।